with the first type of risk or exposure that we have is the transaction risk or exposure. So all the risks, the other name for the risks are the exposure. Now transaction risk क्या है? हम जब भी कोई फॉरेन करेंसी की ट्रांजैक्शन के मिड व्हेन एवर वी आर डीलिंग, तो क्या है कि फ्लक्चुएशंस आती रहती हैं फॉरेन करेंसी में. तो what is transaction risk? Whenever there is change in the values of the foreign currency income or the foreign currency expenditure. So this risk is associated with the time between entering into a contract and settling it. हो सकता है आपने जनवरी में किसी भी तरह का परचेज किया फ्रॉम कनाडा और आपने बोला कि आई विल पेइंग यू इन दी CAD, दैट इज द कैनेडियन डॉलर्स. आपने ये जनवरी में ट्रांजेक्शन किया, that you have bought up the money, the product. आपने वो कनाडा में से जो सामान लिया वो आपने 1 मिलियन कैनेडियन डॉलर्स का लिया और आपने उसको बोला कि मैं जो पेमेंट करूँगा वो अक्टूबर में करूँगा. तो if you see the exchange rate of CAD and INR in January and the exchange rate of CAD and INR in October वो changed है. 1 कैनेडियन डॉलर का जो रेट है वो बहुत बढ़ चुका है इन अक्टूबर एज कम्पेयर टू दी 1 इन दी जनवरी. तो उस वजह से आपको जो कैनेडियन बंदा है या जो फर्म है कैनेडियन फर्म को, आपको उसको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे. हो सकता है कि जनवरी में सिर्फ सपोज इट वाज फॉर $50, तो $50 $1 वॉज फॉर ₹50, तो आपको तब देने थे सिर्फ $50 मिलियन रुपीज. लेकिन अब वो 55 हो गया है. सो ना दैट 55 विल बिकम, तब देने थे 50 मिलियन, नाउ यू सपोज टू गिव 55 मिलियन. तो वो 5 मिलियन का तो गैप आ गया ना. तो उस वजह से दैट रिस्क दैट इज देयर is known as the transaction risk. There is a very good example given. Suppose an Indian company has bought goods from USA and the payables are in foreign currency, that is dollars, जो कि 3 महीने बाद you have to pay. Now it may end up paying higher on the due date if the value of the dollar increases. वही है, अगर पहले वो 50 रुपए का था, अब now it has turned 55 rupees. आपने सामान लिया था जनवरी में, आपने उसकी पेमेंट करनी है अक्टूबर में, तो आपने तब कम पैसे नहीं, अगर जनवरी में ही साथ ही में पेमेंट कर देते तो तब उतने पैसे नहीं देने थे. बट नाउ इफ यू आर गोइंग टू डू दैट पेमेंट इन अक्टूबर, यू विल हैव टू पे मोर. नाउ यू हैव टू पे मोर. उससे क्या होगा, आपका जो परचेज प्राइस है वो बढ़ा, जिसकी वजह से या तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज कम हो या फिर लॉस भी हो सकता है. आई सपोज दिस इज क्लियर. देन द सेकेंड वन इज द translation risk or exposure. This is wrongly written, that is translation risk or exposure. Now translation exposure क्या है? The risk that a company, whenever a company is writing its equity, assets, liabilities, incomes, सब के सब वो फॉरेन करेंसी में लिख रहा है, तो उस वजह से there is always a risk involved. Now what is that risk? That risk is that a company's equities, assets, liabilities, income will change in value as a result of exchange rate changes. Why does this occur? This occurs because a firm denominates, that is puts up a portion of its equity, assets, liability or income in the foreign currency. इंडियन रुपी की बजाय वो क्या करती है, वो फॉरेन करेंसीज में अपना सारा रिपोर्ट बनानी शुरू कर देती है रिगार्डिंग assets, liabilities, what are the incomes, what are the expenditures, what are the equities, सब. तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं there is always a risk involved. क्योंकि अगर तो आप रुपये में लिख रहे हो, चाहे रुपये की वर्थ कुछ 10 साल पहले ज़्यादा थी, आज कम है, लेकिन ये तो है ना कि है तो रुपये ही ना. लेकिन अगर आप अपनी कंट्री में लाकर किसी भी चीज़ को लिख रहे हो किसी और करेंसी में, तो there is always a fluctuation rate का risk involved ना. Now this risk will not affect the firm's cash flow. आपके cash flow में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन it is going to have a significant impact on the stock price. There is an example. Suppose a company purchases the assets last year for $1 million. आपने last year कुछ $1 million के assets purchase किए थे. Now अगर value of dollar decrease हो गई है,
पहले सपोज आपने तब 60 you can say that at that time $1 was 60 rupees, right now it is 50 rupees. तो डॉलर की जो वैल्यू है वो कम हो गई है, तो क्या होगा, दैट एसेट विल बी शोन इन द इंडियन रुपीज ओनली. पहले वो 60 रुपए का शो होना था, अब वो सिर्फ 50 रुपीज का शो होगा. सो अगेन बिकॉज ऑफ द डेप्रिसिएशन इन डॉलर, आपके जो एसेट का प्राइस है, आपके जो एसेट की वर्थ है वो नीचे चली गई है. सो दैट इज द ट्रांसलेशनल रिस्क. I suppose this is also clear. Then the last one is the economic risk or exposure. सारे के सारे फ्लक्चुएशन रेट से है. सबसे पहला फ्लक्चुएशन रेट से कैसे रिलेटेड है कि वहाँ पे आपका इनकम और एक्सपेंडिचर देखा जाता है. देन सेकेंड वन इज योर इनकम, योर लाइबिलिटी, equities, assets, they are all being affected due to this conversion rate. Now the third one is जब आपकी market value is being affected by the exchange rate fluctuation. Now a firm has economic exposure to the degree that its market value is influenced by unexpected exchange rate fluctuations. Now ये जो एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस है वो किस किस चीज़ों को इफेक्ट करती है. द फर्स्ट वन इज दी किसी भी फर्म के मार्केट शेयर का पोजीशन एज रिगार्ड्स टू इट्स कॉम्पिटिटर. अगर 3 इंडस्ट्रीज है किसी भी इकोनॉमी में, तो हो सकता है किसी का शेयर 20% है, किसी का शेयर 30% है, किसी का शेयर 50% है. लेकिन ये एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन की वजह से वो 20-30-50 रेशियो कहीं ना कहीं हैम्पर हो सकती है. देन दे ऑल्सो इफेक्ट दी फर्म्स फ्यूचर कैश फ्लोज. वो पैसे जो अभी फर्म के पास नहीं है लेकिन आने वाले साल 2 साल में आ जाएंगे. देन थर्ड थिंग इट अफेक्ट्स इज फर्म्स वैल्यू, दैट इज इट इज अफेक्टिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज. अब आपको ये पता है the value or the worth of ₹100 in 2010 was far more जितनी उस 100 रुपीज़ की वैल्यू आज है. तब आप सब्जी लेने जाते थे, आपके पेरेंट्स, जस्ट आस्क योर पेरेंट्स, दे यूज टू गेट सो मेनी थिंग्स इन दैट 100 रुपीज़. लेकिन आज जस्ट उसमें क्या आएगा, टमाटर थोड़े से आ जाएंगे और थोड़े से पटेटोज आ जाएंगे. यू विल नॉट बी एबल टू गेट एनीथिंग एल्स, इतने में इतना ही. सो दैट इज वाई वी से दैट द वैल्यू ऑफ or the worth of rupees decreasing or the worth of money is decreasing. So इसी वजह से we are going to calculate firm की value क्या होगा. It is going to be affected by जो पैसे 2 साल के बाद आने हैं उनकी आज वैल्यू क्या है. आज उस जो 2 साल बाद पैसे आने हैं उनकी आज वैल्यू तो ज़्यादा, जैसे 2010 में वैल्यू तो 100 रुपये की ज़्यादा थी ना एज कम्पेयर टू 2020. So that is how we are going to calculate. There is a specific formula for that present value. जो अभी it is not going to be a part of that. So this is how you are going to do. There is a perfect example India और बांग्लादेश के terms में you will be able to relate it. कहते हैं कि there is USA और इंडिया और बांग्लादेश is competing कि वो अपना जो जूट है वो USA में भेज दें. The currency of India is INR, the currency of USA is US dollars, and the currency of Bangladesh is Taka, Bangladeshi Taka. Now, they say that if the currency of Bangladesh depreciates against the dollar, then exports from Bangladesh might become more competitive in terms of price. That is, if we are saying that जो बांग्लादेशी करेंसी है it is depreciating, that is जो उसकी वैल्यू है it is depreciating against the dollar, then क्या होगा, बांग्लादेश को वो थोड़ा ईजियर पड़ जाएगा टू एक्सपोर्ट जूट एज कम्पेयर टू इंडिया. तो उसकी वजह से क्या होगा, एक्सपोर्टर्स फ्रॉम बांग्लादेश वो बहुत लो प्राइस कोट कर पाएंगे एज कम्पेयर टू द इंडियन एक्सपोर्टर्स. और इसी वजह से जो यूएसए को तो यही दिखेगा ना कि जो उसको अच्छे प्राइस में इट इज़ प्रोवाइडिंग द गुड्स, तो वो उसी को सारा का सारा इट विल बी गिविंग द ऑर्डर टू दैट पर्सन ओनली ना. आप भी अगर किसी शॉप में जा रहे हो, 2 शॉप्स को कंपेयर कर रहे हो, आपने एक सपोज कोई भी कॉस्मेटिक लेना है या आपने किसी भी तरह का कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेना है, तो आप क्या करोगे, आप उसी शॉप पे जाओगे ना, द वन हु इज़ गिविंग यू अ रिलायबल प्रोडक्ट इन दी चीपेस्ट प्राइस. सो सिमिलरली यूएस भी उसी से लेगा अपना प्रोडक्ट
जो उसे लगेगा कि हाँ वो अच्छा भी दे रहा है एंड इवन इन अ good price. So the Indian exporter will lose out over here. So these are the three kinds of economic risks that are involved in any kind of international trade transaction.